Good morning everyone. So today we are going to discuss about integration. Yesterday we studied about differentiation. Differentiation means rate of change of something, in which we find how one difference is changing with respect to another difference. First we subtract and then we divide the differences, and this rate of change, this change का ratio with respect to time or with respect to any parameter tells us the differentiation of the value, right? So today we are going to study another important tool of calculus, and that tool is called as integration. Integration, if you go by the meaning, integration means to integrate, right? To combine, right? So integration means to integrate all the smaller parts in order to get the required value. If we say as per the calculus, integration is the reverse process of differentiation. Differentiation में हमने क्या किया था? We are finding the difference and then dividing and finding that ratio, and we named it as time rate of change or rate of change of our speed with which the change is changing. The difference is changing. So we named it as differentiation. But in integration, what we are going to do? We are going to do just opposite. So today we are going to start with the integration. Integration is the reverse process of differentiation, right? So in differentiation, we have taken, suppose we are differentiating a function y is equals to function of x, y is equals to function of x. So how we differentiated that? In order to differentiate that, say y which is the function of x, so in order to differentiate it, what we have done, d over dx of y, मतलब अगर हम differentiation कर रहे हैं y का, तो पहले differentiation में हम क्या करते हैं? पहले subtract करते हैं. We found the change in y, we found the change in x. दोनों को हमने क्या किया? न्यू वैल्यू में से ओल्ड वैल्यू को क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया. तो पहले हमने सब्ट्रैक्शन किया और फिर दोनों के सब्ट्रैक्शन को डिवाइड किया. सो वी हैव डन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. जस्ट ऑपोजिट वी आर गोइंग टू डू इन इंटीग्रेशन. डिवीजन की जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन. पहले क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में सब्ट्रैक्शन की जगह क्या करेंगे? ऐड करेंगे. सो द प्रोसेस इन विच इन प्लेस ऑफ डिवीजन देयर विल बी मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन में व्हाट वी वर यूजिंग सब्ट्रैक्शन. वी वेंट लाइक दिस, पहले सब्ट्रैक्ट किया फिर डिवाइड करेंगे. यहां पे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फाइनली क्या करेंगे? ऐड करेंगे. जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन. तो अगर कोई y विच इज द फंक्शन ऑफ x, सपोज देयर इज अ वेरिएबल y विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x, राइट, फंक्शन ऑफ x, तो हम क्या करेंगे? y वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट y विद dx, वी विल मल्टीप्लाई y विद dx, and say when we multiply y with dx for a given part, we find dx may have different values. We find y dx1, then y dx2, then y dx3, then y dx4 and so on, and then we do what we do? We add all of them. So add करने के लिए हम ये symbol लगा देते हैं. This is the symbol of integration. y into dx हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया और फाइनली उसको क्या कर दिया? ऐड. ये जो सिंबल है, this is the symbol of integration which tells us how are we going to add all the values. This is the symbol of integration, right? For example, suppose we have taken a velocity and time graph. As we know very well, the area under the velocity time graph tells us the डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. बॉडी ने कितना डिस्प्लेस किया, कैसे पता लगाते हैं हम? स्लोप से हमें क्या पता चलता है? स्पीड. लेकिन वेलोसिटी टाइम के स्लोप से हमें क्या पता चलेगा? एक्सेलरेशन, राइट? पोजीशन टाइम है तो स्पीड. बट व्हेन वी आर फाइंडिंग द एरिया, वी आर फाइंडिंग द एरिया फ्रॉम हियर टू हियर. द एरिया अंडर द ग्राफ टेल्स अस, ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है, इससे हमें क्या पता चलेगा? हाउ मच द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड. अगर ये एरिया मतलब इफ वेलोसिटी वुड हैव बीन यूनिफॉर्म, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता तो हम क्या करते? हम इजीली एरिया फाइंड कर सकते. जैसे कि हम क्या करते हैं? जैसे हम 10th स्टैंडर्ड में करते हैं या 9th स्टैंडर्ड में करते हैं. हमने कहा कि ऐसे बॉडी ने मूव किया, तो हमने यहां से ड्रॉ किया, यहां से ड्रॉ किया, यहां से कंस्ट्रक्शन किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, और दोनों को ऐड करने से हमें ये सारा एरिया पता चल गया, राइट? एरिया पता चल गया तो हम क्या बोल सकते हैं? एरिया टेल्स अस द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. बट यहां पे ये क्या है? ये ऐसे नहीं है, ये वेरिएबल वेलोसिटी है. दिस इज अ वेरिएबल वेलोसिटी.
वेरिएबल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो इसको हम किसी ज्योमेट्रिक पैटर्न से, स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिक पैटर्न से हम इसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते, right? Because you cannot say it is a triangle, you cannot say it is a trapezium, it is curvilinear, so we can't decide how to find its area. So for that we take the help of calculus. How do we take the help of calculus? Yes, how do we take the help of calculus? What we have taken, ये t1 to t2 के बीच में हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, बॉडी ने कितना डिस्प्लेस किया t1 टाइम से t2 टाइम तक. सो व्हाट वी हैव टेकन, हमने ये वाला स्मॉल डिस्टेंस, ये टाइम लिया और यहां से एक ये बना दिया. अब ये जो पैच है, ये जो पैच है, ये दोनों पॉइंट्स इतने पास हैं कि हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या कर ले सकते हैं, इसका एरिया लेंथ इनटू विड्थ, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स पास है. बट फिर भी हमने कहा कि हमने बहुत स्मॉल पैच लिया बिटवीन, कोई भी टाइम हमने t1 t2 ले लिया, और हमने क्या किया, हमने ये वाला पैच बहुत क्लोज लिया, तो हम ये और ये पॉइंट इतने ज्यादा पास है, तो अप्रोक्सीमेटली हम क्या ले सकते हैं, ये एक रेक्टेंगल है. इसी तरह से ये वाला पॉइंट और नेक्स्ट वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इतने पास है कि हम इसको भी ले सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल. हमने इसका एरिया निकाला, लेट अस से दिस एरिया एज DA1, इसका एरिया निकाला, लेट अस से DA2, D मीन्स स्मॉल वियर, इसका भी एरिया हमने निकाला थर्ड वाली स्ट्रिप का. बहुत सारी स्ट्रिप्स में इसको कट कर लिया, और हर एक स्ट्रिप को, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स पास में, तो हमने क्या मान लिया, ये अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी यहां से यहां तक रेक्टेंगल नहीं ले सकते, लेकिन थोड़ा 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 रेक्टेंगल ले सकते हैं. लेंथ कितना होगा, वेलोसिटी, जो v का वैल्यू होगा दैट इज द लेंथ. विड्थ कितना होगा, जो टाइम पीरियड हमने लिया दैट विल बी द विड्थ. लेंथ इनटू विड्थ से मेरा फर्स्ट एरिया आ गया DA1, सेकंड आ गया DA2, थर्ड आ गया DA3. ऐसे ही करते 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 मेरे पास इसमें मैंने बहुत सारी स्ट्रिप्स बना ली, और वो सारी स्ट्रिप्स का एरिया मैंने आई ट्राइड टू फाइंड, राइट. फाइनली पूरे पैच का एरिया चाहिए, तो कैसे मिलेगा, DA1 प्लस DA2 प्लस DA3 प्लस DA4 एंड सो ऑन. तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव integrated all the small areas, and when I have integrated all the small areas, DA1 will be, DA1 क्या होगा, यहां पे जो वेलोसिटी V1 है इनटू टाइम t1, DA2 क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो गई, DA3 कितना होगा, फिर से वेलोसिटी चेंज हो गई, टाइम चेंज हो गया, DA4 कितना होगा, वेलोसिटी चेंज, टाइम चेंज, एंड सो ऑन. सो मैंने DA1 निकाला V इंटू dt, DA2 निकाला V2 इंटू dt2, VA3 निकाला V3 इंटू dt3. ऐसे ही करते 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 व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन इंटीग्रेशन ऑफ ऑल V dt, सारी V dt1, V dt2, V3 dt3 एंड सो ऑन, सारी वेलोसिटी इंटू dt को ऐड कर लिया. ऐड करने का मतलब ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन. So this tells me the area of the whole patch, and area of the whole patch means we can easily find the displacement of the patch, which looks like this, right? So that is how we integrate. So how we can say displacement is the integration of v dt. area हम निकालते हैं geometrically, और ये area ही हमें क्या बताता है, this area tells us the displacement of the body, the area covered between velocity time graph. So that is how we apply the process of integration whenever we don't have a clarity about the geometrical figure, जो कि continuous नहीं है, discrete है, right? So that is how we apply area. For example, suppose we will take one more example. We know that a body is not having a constant force. कोई body ने ऐसे force लगाया और ये body का displacement है, तो ऐसे फोर्स में हम क्या करते हैं, हम सीधा सीधा एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल से हम पता लगा लेते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना वर्क डन किया बॉडी ने. बट एवरी टाइम द फोर्स कैन नॉट बी कांस्टेंट. कांस्टेंट फोर्स नहीं है. कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है. वेरिएबल फोर्स है, पहले कम लगा फिर और इंक्रीज हुआ फिर और इस तरह से फोर्स इंक्रीज होते 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 ये कर्व मिला. अभी मुझे बताओ x1 में, और बॉडी ने यहां से चलना शुरू किया था, ये इट इज नॉट शोन. सपोज यहां से शुरू किया एंड इट इज नॉट शोन. मुझे क्या चाहिए, मुझे x1 और x2 में बॉडी ने कितना काम किया. पहले वर्क डन 0 था, फिर इंक्रीज हुआ होते 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 यहां तक वर्क डन हुआ. नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड कि x1 और x2 के बीच में कितना वर्क डन हुआ. देन हाउ टू डू दैट, अगेन वी विल अप्लाई द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. वी नो दैट force into displacement gives us the work done. So what I will do, I will take small value of x1 को अभी छोड़ी दो, x ही लो चलो.
x1 x2 विल कीप लेटर। मैंने ये वाला स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया dx1 और ये dx1 के लिए ये फोर्स निकाला और F और dx से क्या निकाल लिया, वर्क डन 1 निकाल लिया, F इंटू dx1। इसी तरह से dw2 विल बी F2, क्योंकि जब मैं ये वाला स्ट्रिप लूंगी, ये वाला स्ट्रिप व्हेन आई विल टेक, फोर्स का वैल्यू भी चेंज हो गया, dx2 भी चेंज हो गया। सो dx2 से और F2 से आई हैव फाउंड dw2। पहले वाले पैच से स्ट्रिप dw1, ये वाला मुझे मिलेगा dw1, ये मिलेगा dw2, ये मिलेगा dw3 एंड सो ऑन, एंड आई हैव डिवाइडेड इट इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। अभी हर एक स्ट्रिप का एरिया मुझे एक स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। हाउ टू फाइंड द टोटल वर्क डन? टोटल वर्क डन विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल स्मॉल dw। सारे वर्क डन जितने भी वर्क डन है उनको ऐड कर दिया, उनको क्या कर दिया, सबको ऐड कर दिया। पहले मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई मींस f इंटू dx, पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया सो दैट इस वाले पैच का वर्क डन मिले, इस वाले स्ट्रिप का मिले, इस वाले स्ट्रिप का मिले, बाद में उन सबको ऐड कर दिया। सो हाउ विल आई फाइंड द वर्क डन? वर्क डन विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल f dx। जितने भी फोर्सेस अलग अलग है, यहाँ पे फोर्स अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, सारे फोर्सेस इनटू dx को क्या कर दिया, सबको इंटीग्रेट कर दिया और यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें वर्क डन, टोटल वर्क डन ऑफ द पैच मिलेगा, राइट। नाउ हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन? इन ऑर्डर टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन वी विल अगेन रिकॉल, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था, अगर हम d ओवर dx फाइंड कर रहे हैं x रेज़ टू पावर n का, तो हमने क्या किया था, ये जो n है ये शुरू में आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और x रेज़ टू पावर n में एक पावर क्या हो जाएगी, रिड्यूस, x की पावर कितना हो जाएगा, n-1। अभी इसका रिवर्स कर देंगे। हाउ? यहां पे हमारी x की पावर क्या हुई थी, n-1। अभी हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसका, x रेज़ टू पावर n का, और साथ में क्या आएगा, dx तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम ऐड करते हैं तो हम बोलते हैं वी आर इंटीग्रेटिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, x की पावर 1 रिड्यूस हुई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की पावर 1 इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। यहाँ पे x की पावर रिड्यूस हुई, इसका ऑपोजिट यहाँ पे x की पावर n जो है, यहाँ पे n-1 हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n+1। यहाँ पे ये जो n है यहाँ मल्टीप्लाई में आया था, यहाँ पे जो भी पावर है ये हमारी किस में आ जाएगी, डिवीजन में आ जाएगी। तो हमारा x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला क्या बनेगा, x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1 विल बी द फॉर्मूला ऑफ integration of x raised to power n. So in most of the cases we are going to use this. Further we will discuss more formulae, but for now इंटीग्रेशन का जो मोस्ट बेसिक फॉर्मूला है, जो मेनली तुम यूज करने वाले न्यूमेरिकल्स में, दैट विल बी x रेज़ टू पावर n विल बी x रेज़ टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, राइट। नाउ इंटीग्रेशन कैन आल्सो बी ऑफ टू टाइप्स, राइट। व्हाट आर दोज टू टाइप्स? इट कुड बी डेफिनेट इंटीग्रल और इट कुड बी इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट में हमें कुछ ना कुछ एक प्योर मैथमेटिकल वैल्यू, कोई नंबर हमें मिलेगा। डेफिनेट मतलब हमें पता है कि इसका वैल्यू इतना है। इनडेफिनेट में देयर विल बी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ t, इन टर्म्स ऑफ x, कोई भी इक्वेशन हो सकती है और हमें पता नहीं है उसका वैल्यू कितना है। सो इंटीग्रल्स कुड बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज डेफिनेट इंटीग्रल्स and the other ones are indefinite integrals. For example, हमने कहा कि the velocity of a moving body is given by 3t square minus 2t plus 1. ये कैसा वैल्यू है? ये indefinite वैल्यू है। जब तक हमें t का वैल्यू नहीं पता हम बोलेंगे velocity का इतना वैल्यू है, राइट। वेलोसिटी क्या है? 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। ये एक इनडेफिनेट वैल्यू है अंटिल यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ t। सपोज किसी ने बोला कि t जो है हमें 1 सेकेंड, द वैल्यू ऑफ t इज 1। सो इफ वी कीप वैल्यू ऑफ t एज 1 तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1। सो 3 माइनस 2 प्लस 1, 1 प्लस 1। अभी वेलोसिटी कितनी हो गई? 2। तो ये जो वैल्यू है वेलोसिटी की, जब हमें t पता है, व्हेन वी नो t, द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी व्हाटएवर वैल्यू वी विल गेट विल बी द डेफिनेट वैल्यू ऑफ द वर्क डन। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ये ग्राफ है और हमें क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड कि लेट अस फाइंड दैट वैल्यू ऑफ x1 is 2 and value of x2 is 5 and calculate the work done by the body in displacing it from 2 meter to 5 meter। अभी मैंने दो लिमिट्स दे दी हैं इसकी, राइट। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू अप्लाई द लिमिट्स। सो फॉर एग्जाम्पल वर्क डन फ्रॉम x2 2 to x2 5 we have to find, let f is 2x minus 2,
So work done will be f into dx, because we know work done is f into dx. Limits 2 to 5, लोअर लिमिट इज 2, मतलब इससे पहले का वर्क डन हमें नहीं चाहिए. अपर लिमिट इज 5, इसके बाद जो वर्क डन हुआ वो भी हमें नहीं चाहिए. देन हाउ टू अप्लाई दैट, राइट? जस्ट अ मिनट. ओके, देन हाउ टू फाइंड दैट. तो हम सबसे पहले f का वैल्यू रखेंगे. अभी हम लिमिट्स का बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम f का वैल्यू रखेंगे 2x - 2. लेट अस इंटीग्रेट दैट. 2x इंटीग्रेशन हुआ, ये dx आया साथ में, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, राइट? 2 बाहर चला गया, 2 to 5 लिमिट्स रखेंगे. x की पावर कितनी है 1, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेट होके x की पावर 2/2. अब हमने इंटीग्रेट कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया. जैसे ही हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये इंटीग्रेशन का साइन और dx दोनों हट जाएंगे. अगर आपने यहां भी इंटीग्रेशन लगाया तो इसका मतलब अभी इंटीग्रेट करना बाकी है, बट बिकॉज हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो ये साइन हट जाएगा, राइट? और साइन हटने पे ये जो कांस्टेंट है ये आप बाहर ले सकते हो, और ये जो लिमिट्स हैं 2 to 5, दिस वुड बी रिटन ऑन राइट हैंड साइड 5 and 2. मतलब लिमिट्स लगानी बाकी है, बट आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है. माइनस ये 2 बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx. नाउ वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x. वाई? बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या मतलब है, x है ही नहीं यहाँ पे, मतलब x की पावर कितनी है 0. x की पावर 0 का मतलब x की पावर 0 + 1/0 + 1. तो इंटीग्रेशन ऑफ dx हमेशा क्या लिखेंगे x. इंटीग्रेशन ऑफ dt हमेशा क्या लिखेंगे t. इंटीग्रेशन ऑफ dv हमेशा क्या लिखेंगे v. दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट. बिकॉज कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे x की पावर 0 है, x की पावर 0 + 1, दैट इज x की पावर 1/1. तो ये क्या हो जाएगा x. तो dx है खाली, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x. मैंने फॉर्मूला लगा दिया तो साइन हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा x. लिमिट्स 2 to 5, अभी साइन हटा दिया तो लिमिट्स 2 to 5, राइट? दिस 2 कम्स आउटसाइड, 2/2. लिमिट किसकी है, x की लिमिट है, तो पहले आएगी अपर लिमिट. x की जगह मैंने 5 रख दिया, 5 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट. लोअर लिमिट कितना है 2 का स्क्वायर एंड माइनस 2 x की पावर 1, मतलब अपर लिमिट की पावर 1 माइनस लोअर लिमिट की पावर 1. नहीं भी लिखा तो चलेगा यहाँ पे, राइट? बिकॉज x की कुछ भी पावर नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया. यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 5 5 25 माइनस 4 माइनस 2 into 5 minus 2, that is 3. So our answer will be 25 minus 4 is 21 minus 6. So what will be our answer? Our answer will be 15 joules. 15 जूल इज आवर वर्क डन. अच्छा, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्यों करते हैं? अगर हम अपर लिमिट ही लगाए, हमने कहा कि x हमने 5 ही लगाया, तो हमारे पास 0 से 5 का ये सारा वर्क डन आ जाएगा, राइट? ये सारा वर्क डन आ जाएगा अगर हमने 5 लगाया. लेकिन हमें क्या चाहिए, ये वाला वर्क डन नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारा एरिया निकाल के और ये सारे एरिया को माइनस करना पड़ेगा. दैट इज व्हाई व्हेन वी आर फाइंडिंग एरिया, व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि ये एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाले पैच का एरिया आएगा. सो बिकॉज वी हैव गॉट अ particular mathematical value, so what kind of integral this is? This is a definite integral in which we get a particular value, right? Thank you children. In our next lecture we'll discuss about the basic formula of integration. Hope you understood.